Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Glow e-school system. Respected viewers and inclined students, Assalamu alaikum. Welcome to Glow e-school system online classes. Hope you all are doing well. So I'm your class teacher Hira Arshad and I will be teaching you English. You can watch this lecture on our YouTube channel as well. Please subscribe our channel to get latest lectures and academic updates. Please use Glow mobile app for downloading of notes, home tasks and periodic tests. This lecture will be sent to you on your class WhatsApp group as well. Thank you. Now the targets of the lecture are homework, tests and exercise. By the end of this lecture, I am going to give you some home tasks which will include some exercise questions or tests. Please complete this home task on your subject copy and submit it back to us for checking. Please note, these home tasks have marks which will be awarded in first term exams, so try to complete all given tasks in time. Hope you will enjoy this lecture and it will add to your academic growth. So this introduction of the lecture is, or the title of the today's lesson is Adventures of Isabel, and the description of the poem is, or the lesson is, actually the poem tells a story of a little girl Isabel who had lots of challenges to overcome. What are these challenges? Let's start now and I'll tell you what are these challenges. So starting from the page number 1, poem Adventures of Isabel. इज़ाबेल के कारनामे या इज़ाबेल की मुहिम जोई, एडवेंचर्स कहते हैं मुहिम जोई को, तो इसका मतलब हुआ एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल का इज़ाबेल के मुहिम जोई या उसके कारनामे. Okay class, starting from the table you can see on the page number 2 which says words to know. Here are some words which and the synonyms, English word meanings you can say. I'll tell you their Urdu meanings from starting from the first one. First one is cavernous. Cavernous का मतलब होता है गार. The second one is concoctor. Concoctor कहते हैं बनाने वाले को, जो बहुत ज़्यादा ingredients मिला के दवाइयाँ बनाते हैं जो लोग, उनको concoctor कहते हैं. Third one is crowd. Crowd का मतलब होता है खुशी से चिल्लाना. Next one is hideous. Hideous का मतलब होता है खौफनाक. Next one is pitch. Pitch का मतलब होता है तारकोल. Next is rancor. Rancor का मतलब होता है नफरत. उसके नीचे वाला है ravenous. Ravenous का मतलब होता है लालची या हरीस. Next one is scurry. Scurry का मतलब होता है तेज तेज चलना, छोटे कदमों से तेज तेज चलना या फिर भागना. नेक्स्ट वन इज़ सेल्फ रिलायंट. सेल्फ रिलायंट कहते हैं खुद इन्हिसारी को या फिर खुद एतमादी को, खुद पर भरोसा होने को कहते हैं. सेकंड लास्ट इज स्प्रिंकल्ड. स्प्रिंकल्ड का मतलब होता है छिड़का हुआ या फैला हुआ. मोस्टली इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है छिड़का हुआ. एंड द लास्ट वन इज ज़ुबैक. ओके क्लास, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप लोगों ने एग्जैक्ट करनी है. ज़ुबैक इसकी प्रोनाउंसिएशन है, या फिर ज़वेबैक या फिर ज़वेबैक, इसकी दो प्रोनाउंसिएशंस होती हैं. और इसका मतलब होता है सेंकी हुई रोटी या फिर ब्रेड. ओके क्लास, स्टार्टिंग फ्रॉम द रीडिंग एंड द ट्रांसलेशन ऑफ द पोएम. अब आप लोगों की पोएम की रीडिंग करने लगी और साथ ही इसकी मैं ट्रांसलेशन बताऊंगी अब आप लोगों को. ओके स्टार्ट. फर्स्ट लाइन इज इज़ाबेल मेट एन एनॉर्मस बियर. इज़ाबेल एक बहुत बड़े रीछ से मिलती है. इज़ाबेल डिडंट केयर. इज़ाबेल इसकी परवाह नहीं करती. द बेयर वॉज हंग्री. द बेयर वॉज रेवेनस. रीछ बहुत भूखा था और वो बहुत ज़्यादा लालची था. द बेयर्स बिग माउथ वॉज क्रूअल एंड कैवर्नस. जो रीछ का बहुत बड़ा जालिमाना और गारनुमा मुँह था. The bear said, Isabel, glad to meet you.
रीच कहता है इजाबेल तुमसे मिलकर खुशी हुई। हाउ डू इजाबेल, नाउ आई विल ईट यू। अब इजाबेल मैं तुम्हें खा जाऊंगा। इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल बिल्कुल परेशान ना हुई या बिल्कुल ना घबराई। इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, इजाबेल ना ही चिल्लाई और ना ही भागी। स्क्रीम का मतलब होता है चिल्लाना और स्करी का मतलब होता है भागना, छोटे छोटे कदमों से तेज तेज भागना। शी वॉश्ड हर हैंड्स, उसने अपने हाथ धोए। एंड शी स्ट्रेटेंड हर हेयर अप, और उसने अपने बालों को सीधा किया। देन इजाबेल क्वाइटली एट द बेयर अप, और फिर इजाबेल ने खामोशी से रीच को खा लिया। नेक्स्ट स्टैंजा अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास। वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच, एक रात जो इतनी काली थी जैसा कि तारकोल। पिच कहते हैं तारकोल को, जो आप लोगों ने यूजली देखा होगा एक ब्लैक मटेरियल होता है जो यूजली सड़कें बनाने में भी इस्तेमाल होता है, उसको तारकोल कहते हैं। तो पिच तारकोल को कहते हैं। वंस इन अ नाइट एज ब्लैक एज पिच, एक रात जो इतनी काली थी जैसा कि तारकोल। इजाबेल मेट अ विक्ड ओल्ड विच, इजाबेल एक चालाक बूढ़ी जादूगरनी से मिली। विक्ड का मतलब होता है चालाक, ओल्ड का मतलब बूढ़ी, विच का मतलब जादूगरनी। इजाबेल एक चालाक बूढ़ी जादूगरनी से मिली। द विच गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल्ड, ओके गम्स का मतलब होता है मसूड़े, टीथ दांत, स्प्रिंकल्ड का मतलब छिड़के हुए या फैले हुए। सो इसका मतलब जादूगरनी के मसूड़े में जो दांत थे वो काफ़ी बिखरे हुए थे। ओके क्लास, मैंने एक लाइन मिस कर दी है, ऊपर वाली लाइन है उसके। इजाबेल मेट अ विक्ड ओल्ड विच, इजाबेल एक चालाक बूढ़ी जादूगरनी से मिली। नेक्स्ट लाइन है द विच फेस वॉज क्रॉस एंड रिंकल्ड, जादूगरनी का चेहरा गुस्से में था और झुर्रियों से भरा हुआ था। क्रॉस का मतलब गुस्से में था एंड रिंकल्ड का मतलब होता है झुर्रियों से भरा हुआ। द विच गम्स विद टीथ वर स्प्रिंकल्ड, जादूगरनी के मसूड़ों में जो दांत थे वो बिखरे हुए थे। हु इजाबेल, द ओल्ड विच क्राउड, जो बूढ़ी जादूगरनी थी वो चिल्लाई। हु इजाबेल, आई टर्न यू इनटू एन अगली टोड, मैं तुम्हें एक बदसूरत मेंढक में बदल दूंगी। टोड कहते हैं मेंढक का बच्चा, जो छोटा मेंढक होता है उसको कहते हैं अगली बदसूरत। मैं तुम्हें एक बदसूरत मेंढक में बदल दूंगी। इजाबेल डिडंट वरी, इजाबेल बिल्कुल नहीं घबराई। इजाबेल डिडंट स्क्रीम और स्करी, इजाबेल ना ही चिल्लाई और ना ही भागी। शी शोड नो रेंज, उसने ना ही गुस्सा दिखाया। एंड शी शोड नो रैंकर, और ना ही उसमें किसी किस्म की तलखी थी, ना उसने किसी किस्म की तलखी दिखाई और ना ही नफरत दिखाई। रैंकर नफरत को या तलखी को कहते हैं, रेज गुस्से को कहते हैं। शोड का मतलब होता है दिखाना, उसने ना ही किसी किस्म का गुस्सा दिखाया और ना ही किसी किस्म की नफरत दिखाई। टर्निंग टू अवर नेक्स्ट पेज क्लास। बट शी टर्न द विच इनटू मिल्क एंड ड्रैंक हर, लेकिन इसने जादूगरनी को दूध में बदला और इसे पी लिया। इजाबेल मेट अ हिडियस जायंट, इजाबेल एक बहुत बड़े खौफनाक देव से मिली। ओके क्लास, हिडियस कहते हैं खौफनाक, जायंट देव, ठीक है। इजाबेल कंटिन्यूड सेल्फ रिलायंट, इजाबेल को खुद पर बहुत भरोसा था। मैंने आपको पहले सेल्फ रिलायंट का मीनिंग बताया, खुद एतमादी का, खुद पर भरोसा होना को कहते हैं। इजाबेल को खुद पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। द जायंट वॉज हेरी, द जायंट वॉज हॉरिड, देव बालों से भरा हुआ था। हेरी कहते हैं जिसके जिस्म पर बहुत ज़्यादा बाल हों, एंड हॉरिड कहते हैं बहुत ज़्यादा खौफनाक। तो देव बालों से भरा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा खौफनाक था। He had one eye in the middle of his forehead, और उसके माथे के दरमियान एक आंख थी। Good morning, Isabel, the giant said. सुबह बखैर इजाबेल, देव ने कहा। I'll grind your bones to make my bread. मैं तुम्हारी हड्डियों का चूरा बनाकर अपनी रोटी बनाऊंगा। Isabel didn't worry. इजाबेल बिल्कुल नहीं घबराई। Isabel didn't scream or scurry. इजाबेल ना ही चिल्लाई और ना ही भागी। She nibbled the zwieback that she always fed off.
इसने अपनी रोटी चबाई। ज़ुबैक कहते हैं सेंकी हुई रोटी या ब्रेड, सेंकी हुई ब्रेड या सेंकी हुई रोटी। इज़ाबेल ने अपनी सेंकी हुई रोटी चबाई जो वो हमेशा खाती थी और जो वो अक्सर खाती थी। एंड व्हेन इट वाज गॉन, और जब वो ख़त्म हो गई, शी कट द जायंट्स हेड ऑफ, उसने देव का सर काट दिया। इज़ाबेल मेट अ ट्रबलसम डॉक्टर, इज़ाबेल एक परेशान करने वाले डॉक्टर से मिली। He punched and poked till he really shocked her. उसने उसको मुक्के मारे यहाँ तक कि वो हिल के रह गई। The doctor's talk was of coughs and chills. डॉक्टर की बातें खांसी और कपकपी के बारे में थी। कफ्स खांसी को कहते हैं और चिल्स कपकपाना यानी कि ठंड से कपकपाना या फिर बुखार वगैरह के जो कंडीशन में जब कपकपा रहे होते हैं उसको चिल्स कहते हैं। डॉक्टर की बातें खांसी और कपकपी के बारे में थी। टॉक बातों को कहते हैं। एंड द डॉक्टर्स सैचल बल्ज्ड विद पिल्स। सैचल कहते हैं बैग या बस्ता, जिस एग्जैक्ट अगर इसका मीनिंग बताऊँ मैं, बैग को कहते हैं। बल्ज का मतलब भरा हुआ, पिल्स दवाइयों को। और डॉक्टर का बैग या सामान जो था वो गोलियों से भरा हुआ था। द डॉक्टर सेड अनटू इज़ाबेल, और डॉक्टर ने इज़ाबेल से कहा, swallow this, it will make you well. swallow का मतलब होता है निगलना, यानी कि गले से नीचे ले जाना, निगल जाना उसको। swallow this, it will make you well. well का मतलब होता है ठीक हो जाना है, ठीक करना। इससे निगल जाओ, ये तुम्हें ठीक कर देगा। इज़ाबेल didn't worry. इज़ाबेल बिल्कुल नहीं घबराई। इज़ाबेल didn't scream or scurry. इज़ाबेल ना ही चिल्लाई और ना ही भागी। She took those pills from the pill concoctor. उसने वो दवाइयाँ या वो गोलियाँ जो थी डॉक्टर से ले ली। यहाँ पे पिल कॉन्कॉक्टर का मतलब डॉक्टर के मीनिंग्स में आ रहा है कि वो डॉक्टर से उसने वो चीज़ें ले ली। वैसे कॉन्कॉक्टर कहते हैं जो दवाइयाँ बनाने वाला होता है, जब मुख्तलिफ जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इंग्रेडिएंट्स जो ज़्यादा सारे जिस तरह लैब वगैरह में यूजली साइंटिस्ट या कोई डॉक्टर्स वगैरह आपने देखे होंगे, काफ़ी इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके एक पिल्स या दवाइयाँ बना रहे होते हैं, उनको कॉन्कॉक्टर कहते हैं। ठीक है, तो उसने वो गोलियाँ डॉक्टर से ले ली। एंड इज़ाबेल calmly cured the doctor, और इज़ाबेल ने बड़े आराम से डॉक्टर का इलाज किया। ओके क्लास, तो ये आपकी पोएम थी। इसमें एज सच ये बताया गया है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बैक पेज पे जाऊं तो उस फर्स्ट पेज पे आप लोगों को बताया गया कि वो सबसे पहले एक रीत से मिली, उसके बाद एक जादूगरनी से मिली, फिर उसके बाद वो एक जायंट यानी कि एक देव से मिली, और लास्ट में वो एक डॉक्टर से मिली। तो बेसिकली पोइम का थीम यही था कि एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, के इज़ाबेल ने क्या क्या एडवेंचर्स किए, वो किन किन चीज़ों से मिली, किन किन लोगों से वो मिली, और उसने उनका किस तरह से सामना किया। तो ओवरऑल पोइम में ये बताया गया। होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। ओके, टर्निंग टू अवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 4। हियर इज योर एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। पेज नंबर 5, पेज नंबर 6 एंड पेज नंबर 7। ये आप लोगों के एक्सरसाइज के पेजेस थे जो बुक पे आप लोगों के एक्सरसाइज वो थे। ओके क्लास, अब मैं आप लोगों को असाइनमेंट का बताने लगी हूँ कि आप लोगों ने असाइनमेंट का काम किस तरह से करना है। ओके, सो हियर इज योर असाइनमेंट, पेज नंबर 1, पोएम एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल। जिस तरह आप सबको यहाँ पे नजर आ रहा है, पोएम एडवेंचर्स ऑफ इज़ाबेल, सेंट्रल आइडिया गिवन है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसर्स गिवन है ये सारे। Turning to the next page, words meaning are given and the word sentences are also given in the assignment pages. So your home task is to learn and write question answers, word meanings and word sentences from your assignment on your notebook या English A copies. Also write central idea on your English copies given in your assignment. अब आप लोगों का होम टास्क ये है कि आप लोगों को भी मैंने असाइनमेंट के जो 2 पेजेस दिखाए हैं उसमें आप लोगों के क्वेश्चन आंसर, सेंट्रल आइडिया, वर्ड मीनिंग एंड वर्ड सेंटेंसेस, पूरा चैप्टर गिवन है, सॉल्व्ड है। और आप लोगों ने क्या करना है कि वहाँ से अब आप लोगों ने सबसे पहले याद करना है ये सारी चीज़ें, और उसके बाद आप लोगों ने इंग्लिश ए की कॉपीज़ पे वो सारा होमवर्क करना है। So class, if you have any questions regarding this lecture or the poem, you can ask me anytime, you can consult with me.
Thank you so much.